جناب چیئرمین، مجھ سے پہلے جو سینیٹر تارڑ نے تقریر کی اور اس کے بعد لیڈر آف دا ہاؤس نے تقریر کی، میں سمجھتا ہوں کہ دونوں جانب سے ایک ہی طرز خیال کا سامنے لایا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف وجوہات سامنے لائی گئیں وہ اپنی جگہ پہ جناب چیئرمین درست ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر دونوں جانب سے پارلیمان جو صحیح جڑ ہے اس کو نہیں پکڑے گی اور اس کے حل کے لیے کوشاں نہیں ہوگی تو پھر شاید ایسے واقعات آگے بھی چل کے ہمارے سامنے آئیں۔ Mr. Chairman, I recall Goethe saying that if you kill the storyteller, the country will lose its touch with its childhood. اور جناب چیئرمین یہی ہوا۔ ضیاء الحق کے آمریت کے دور کے اندر وہ تمام لوگ جو ایک آلٹرنیٹیو نیریٹو، ایک پیرالل سوچ کو جنم دیتے تھے، ان کو ریاستی پالیسی کو سامنے رکھتے ہوئے ریاستی پالیسی کے تحت اس سوچ کو ختم کیا گیا اور جان بوجھ کے اس سوچ کا کلا کما کیا گیا۔ جناب چیئرمین، یہ بات درست ہے اور یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک حصہ ہے کہ پاکستان کی ریاست، اور جب میں پاکستان کی ریاست کی بات کرتا ہوں تو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ریاست پہ آ کے رک کیوں جاتے ہیں۔ پاکستان کی ریاست کا مقصد یا مطلب پاکستان کی سول اور ملٹری بیوروکریسی ہے جناب چیئرمین۔ ان دونوں سائیڈوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ نہیں ہیں، اور انہوں نے 1947 سے لے کے آج دن تک جناب چیئرمین رائٹ ونگ کی ریلیجس جماعتوں کو اور مختلف ایکسٹریمسٹ اور جہادی ایلیمنٹ کو سپورٹ کیا تاکہ ان کا انٹرنل اور ایکسٹرنل ڈاکٹرن جو ہے وہ آگے بڑھ سکے۔ جناب چیئرمین اس کے نتیجے میں، اپنے پولیٹیکل ایجنڈا کو آگے بڑھانے کے نتیجے میں، what did the state do, Mr. Chairman? Mr. Chairman, the state countered the multilingual and ethnic complexion of Pakistan with a strong dose of religion. Number two, Mr. Chairman, it countered the democratic and nationalist movements by giving patronage to extremist right-wing forces. It countered, Mr. Chairman, the linguistic and cultural diversity through an imported Arab culture. Because my culture is not the Arab culture, Mr. Chairman.
My culture grows from the Indus Valley civilization. As a consequence, Mr. Chairman, उसके नतीजे में पाकिस्तान एक ऐसी रियासत बन गई जो अपनी मूरिंग्स को, अपनी बुनियादों को आज दिन तक जनाब चेयरमैन ढूंढ रही है, लेकिन वो उसको नहीं मिली। और उसके नतीजे के अंदर जनाब चेयरमैन एक ऐसे माशरे ने जन्म लिया जिस माशरे में अगर एक वकील है और वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में बिलीव करता है तो वो उसको जनाब चेयरमैन प्रैक्टिस नहीं कर सकता। अगर एक एकेडमिशियन है जनाब चेयरमैन तो उसको अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर एकेडमिक फ्रीडम की राइट मौजूद नहीं है। मिस्टर चेयरमैन, द पीपल जो पाकिस्तान के अवाम है जनाब चेयरमैन, उनको पॉलिटिकल डिसेंट का हक हासिल नहीं है जनाब चेयरमैन। और अगर एक जज इन किसी भी फोर्सेस के खिलाफ अपनी जजमेंट लिखता है जनाब चेयरमैन, तो रियासत उसको इबरत का निशान बनाना चाहती है जनाब चेयरमैन। और उसके ऊपर मिस्टर चेयरमैन, ऑल ऑफ दीज पीपल एट वन स्टेज और अनदर बिकम मिसिंग पीपल। मिस्टर चेयरमैन, उनके लवाहिकीन उनको ढूंढते रहते हैं, लेकिन रियासत उनको किसी ऐसे कोने खांचे में छुपा देती है जहां पे उनका सुराग मिलना मुश्किल हो जाता है जनाब चेयरमैन। इसके बरक्स जनाब चेयरमैन, आप क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स ने पैरेलल कोर्ट्स बनाए कराची के अंदर, लाहौर के अंदर, पेशावर के अंदर, सवात के अंदर, मालाकंड के अंदर, लेकिन रियासत खामोश तमाशाई बन के देखती रही जनाब चेयरमैन। मिलिटेंट ग्रुप्स snatch away the right of the state to violence, लेकिन रियासत खामोश तमाशाई बन के देखती रही जनाब चेयरमैन। मिलिटेंट ग्रुप्स ने रियासत की रिट को पारे पारे कर दिया। और मैं सिर्फ आज की बात नहीं कर रहा, मैं तारीख की बात कर रहा हूं कि मिलिटेंट ग्रुप्स ने रियासत की रिट को पारे पारा कर दिया, लेकिन रियासत जनाब चेयरमैन खामोश तमाशाई बन के खड़ी रही। जब एक ऐसी रियासत आपके सामने हो तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मिलिटेंसी आगे नहीं बढ़ेगी? जनाब चेयरमैन, अगर आप आज की सूरत हाल देख लें, और मैं फिर यह बात कह रहा हूं, अक्रॉस द फ्लोर यह बात कहना चाहता हूं कि इसमें पॉलिटिकल फोर्सेस की इन्वॉल्वमेंट 0/0 है। पॉलिटिकल फोर्सेस को एक मास्क की तरह इस्तेमाल किया जाता है। पार्लियामेंट इज यूज्ड, and I underline the word used, when it suits the state, Mr. Chairman. और आज की सूरत हाल क्या है मिस्टर चेयरमैन? एक तरफ आपके पास तालिबान है जो अफगानिस्तान में अपनी कुव्वत के साथ जीत के आए हैं। मैं इस बहस में आज नहीं जाना चाहता कि रियासत की पॉलिसी अफगानिस्तान की तरफ सही है या दुरुस्त है या गलत है, लेकिन मैं सिर्फ एक बात की निशानदेही आपके जरिए से करवाना चाहता हूं कि तालिबान की हम हमायत तो कर रहे हैं, तालिबान के लिए हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन क्या फॉरेन मिनिस्टर ये पसंद करेंगे कि इस हाउस में आके मंडे को ये बताएं कि कल जो अखबारात में खबर छपी कि जो फेंसिंग का प्रोग्राम पाकिस्तान ने
अंडरटेक किया हुआ था अलोंग द पाक अफगान बॉर्डर, उस पे अफगान फोर्सेस ने पाकिस्तानी फोर्सेस को रोक दिया। जनाब चेयरमैन, व्हाट इज द क्विड प्रो को? अगर वो इसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है तो फिर हम आगे इतना किस बात पे बढ़ रहे हैं? जनाब चेयरमैन, यह भी दुरुस्त है कि टीटीपी के मुख्तलिफ ग्रोह अफगानिस्तान के अंदर रीयूनाइट हो रहे हैं, एंड दे आर बैक्ड बाय ट्रांस नेशनल मिलिटेंट ग्रुप्स, एंड दिस विल गिव राइज टू मिलिटेंसी एंड एक्सट्रीमिज्म इन पाकिस्तान। टीटीपी के साथ हमने मुज़ाकरात किए, यह कहा गया कि सीज फायर मार्ज़े वजूद में आ गया है, लेकिन उस सीज फायर के मार्ज़े वजूद में आने के बावजूद जनाब चेयरमैन, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के और सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान और जवान शहीद हो रहे हैं। What type of a ceasefire is in place? पार्लियामान ये जानना चाहती है, रियासत को ये बताना होगा कि वो किन टर्म्स के ऊपर इनके साथ बैठ के सीज फायर की जो है वो बात कर रहे हैं। जनाब चेयरमैन, इसके साथ साथ अल-कायदा के जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं वो अफगान बॉर्डर के साथ मौजूद हैं। हमारी उनके लिए या रियासत की उनके लिए क्या हिकमत अमली है? और फिर फाइनली जनाब चेयरमैन, इंटरनली यू हैव दोज मिलिटेंट ग्रुप्स, यू हैव दोज एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स जिनको रियासत अज खुद 47 से लेके आज दिन तक एक शक्ल में या दूसरी शक्ल के अंदर जनाब चेयरमैन सपोर्ट करती आई है। ऐसी सूरत हाल के अंदर जनाब चेयरमैन, यह अफसोस की बात है कि वो अदारे जो आइन के तहत रियासत के अदारे हैं, उन अदारों को जानबूझ के और बिलखसूस पार्लियामान को, और बिलखसूस पार्लियामान को रिडंडेंट बनाया जा रहा है। जनाब चेयरमैन, उसके नतीजे में वी आर गिविंग राइज, मिस्टर चेयरमैन, टू अ फैशिस्ट स्टेट वेयर द ब्रेकडाउन ऑफ द रिट ऑफ द स्टेट इज एविडेंट। जनाब चेयरमैन, ये जो वाकयात सामने आ रहे हैं, वी आर गिविंग राइज टू अ फैमिली of warlords emerging who are free from the control of the state. इन warlords के ऊपर रियासत का कोई कंट्रोल नहीं है, और अगर ये कंट्रोल में आते भी हैं तो ये अपनी मर्जी के शराइत के ऊपर जनाब चेयरमैन वो इनके कंट्रोल में आते हैं। रियासत अब जनाब चेयरमैन मजीद खुफिया मुआहिदों का मुतहर्रिक नहीं हो सकती। जनाब चेयरमैन, यह आईनी हक है हर पाकिस्तानी का कि उसको इस बात का इल्म हो और वो इस बात का शराकतदार हो कि रियासत का आइंदा का ढांचा किस शक्ल का होगा। और इसमें जनाब चेयरमैन जो फलक्रम है, जो पिवट है, वो पाकिस्तान की पार्लियामान है। जनाब चेयरमैन, द नेशनल एक्शन प्लान, मिस्टर चेयरमैन, needs to be implemented. The National Action Plan, Mr. Chairman, needs to be redebated in Parliament, Mr. Chairman. और आखिर में जनाब चेयरमैन, ये जो यात्रा है कि रियासत को सब कुछ पता है और रियासत जो भी कर रही है वो दुरुस्त कर रही है, ये यात्रा को अब जनाब चेयरमैन खत्म होना पड़ेगा। रियासत को, पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी को
जवाबदेह होना पड़ेगा इस पार्लियामान को। जब तक वो जवाबदेह इस पार्लियामान को नहीं होंगे जनाब चेयरमैन, ये रविश चलती रहेगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।